हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 29 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेंशंस इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। सो यहाँ पर आपसे पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में तनाव से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The East China Sea borders China, Taiwan, Japan, and South Korea, with China claiming sovereignty over the Senkaku and Diaoyu Islands. And second, the South China Sea is home to vast reserves of untapped water, untapped oil and natural gas and forms a critical maritime trade route. And third, the US has not enhanced its military cooperation with any regional countries in response to China's activities in the South China Sea. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है पूर्वी और जो दक्षिणी चीन सागर है उसके तनाव से संबंधित यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं, The US has enhanced its military cooperation with the regional allies such as Japan, South Korea, and the Philippines in response to China's assertive actions. And this includes joint military exercise, increased defense capabilities, and diplomatic support. So countries like Japan, Philippines, and South Korea are strengthening their defense capabilities, and US has affirmed its commitment to its treaty allies conducting multilateral maritime cooperative activities like with the nations like Australia. चाइना की बात करें तो चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी को एज अ legal standing according to 2016 ruling by the Permanent Court of Arbitration, which China rejected, and this ongoing disregard for international law contributes to heightened tension in the region. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of World Maritime Day 2024 observed on 26th of September? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है जो 26 सितंबर को मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं, मार्पोल एट 50 आर कमिटमेंट गोज ऑन, सेकंड नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, थर्ड न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग, या फिर सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। आपको बताना है कि इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस का विषय क्या रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो थीम रही है इस वर्ष की नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। आप यहां देख सकते हैं, वर्ल्ड मैरीटाइम डे organized by the International Maritime Organization is celebrated annually on the last Thursday of the September. So in 2024 it falls on 26th of September. The theme for this year is Navigating the Future Safety First, and this day emphasizes the significance of maritime activities and the industry's contributions to global development, raising awareness about safety measures and innovations in the maritime sector. आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष जो विश्व मैरीटाइम दिवस मनाया गया है ये मनाया गया है 26 ऑफ सितंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ministry of Health and Family Welfare recently inaugurated the Climate and Health Solutions India Conclave in which organization? With which organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में
किसके साथ जलवायु एवं स्वास्थ्य समाधान भारत संगठन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एडीबी के साथ मिलकर। आप यहां देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर and Asian Development Bank launched the Climate and Health Solutions India Conclave in Delhi. And the two-day event focuses on addressing climate change and public health challenges. So policymakers, experts, and stakeholders are collaborating to develop strategies for India's health sector. And the conclave aims to build a climate resilient health system, and India is integrating climate factors into health policies and emergency responses, setting an example for developing nations. इसके साथ ही एडीबी की बात करें तो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। ये जो बैंक है ये मेंटेन करता है 31 फील्ड ऑफिसेस को अराउंड द वर्ल्ड, एंड इट आल्सो प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। वर्तमान समय में एडीबी में 68 मेंबर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल सिल्क बोर्ड। यहां पर केंद्रीय रेशम जो बोर्ड है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established in 1948 by an act of parliament. And second, the CSB operates under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Third, India is the second largest silk producer in the world, producing mulberry, iri, tussar, munga silk varieties. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं द सीएसबी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। And Karnataka is the leading silk producing state in India, contributing around 32% of the country's total production in 2021 and 22, followed by Andhra Pradesh. सिल्क वेराइटीज की बात करें जो भारत में होती हैं उनमें एक तो है मलबरी जो कि मोस्ट कॉमन सिल्क वेराइटी है और ये उत्पादित किया जाता है कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। सेकंड है इरी, predominantly produced in Assam and Meghalaya, and it is known for its non-violent silk extraction method. Then third is tussar, mostly produced in Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha using wild silkworms. And fourth is munga. Munga is exclusively produced in Assam and it is known for its natural golden color. इसके साथ ही आपने देखा कि जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है तो वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization has recently signed an MOU with the Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences to enhance space situational awareness? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस संगठन ने हाल ही में आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। आपके ऑप्शंस हैं
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। आप यहां देख सकते हैं recently Nainital based Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences and Autonomous Institute under the Department of Science and Technology has signed a memorandum of understanding with the Bharat Electronics Limited, जो कि एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, to enhance space technologies, particularly focusing on space situational awareness. So, under this partnership, the organizations will develop advanced image processing techniques, data analytics software, and new instruments to monitor space objects, particularly near Earth objects and artificial satellites, which will ensure the safety of satellites and their users. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So, India will host the WTSA 24. What is the full form of WTSA? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत WTSA 24 की मेजबानी करेगा। आपको बताना है कि WTSA जो है इसका पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, वर्ल्ड टेक्निकल सिंपोजियम एंड असेंबली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली या फिर वर्ल्ड वाइड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो WTSA का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। आप यहां देख सकते हैं India is set to host the World Telecommunication Standardization Assembly for the first time in October 2024. आपने इसका फुल फॉर्म देखा, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, and this event is organized by the International Telecommunication Union. The assembly aims to set global standards for telecommunication and ICT, जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। So this event is significant for developing future communication technologies including 5G and 6G. इसके साथ ही WTSA की बात करें तो ये एक गवर्निंग कॉन्फ्रेंस है ITU का, one of the 3 world conferences of the International Telecommunication Union such as United Nations system. और इस वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा WTSA 2024 का नई दिल्ली में। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।